Okay, it's happening. It's happening. Okay, so just a couple of objectives for the workshop is सबसे पहले तो we will understand what are boundaries. Why do we need them and what happens when we don't have boundaries? A very, very important thing we are going to discuss today is also about the difference between boundaries and the difference between boundaries and not taking responsibility. इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड अ लॉट ऑफ अस टेक के बाउंड्री सेट करने का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी ना लेना या अपनी जिम्मेदारी से भागना, राइट? सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द लाइन बिटवीन द टू एंड ऑफ कोर्स अगर हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी सेट बाउंड्रीज एंड हाउ डू वी मेंटेन देम. वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हम सब में से सिर्फ मैं अकेली बात ना करूं, हम सब थोड़ी बात करें. सो कैन आई रिक्वेस्ट each one of you to share your name and one thing you would want to learn from the workshop? As Humaira said, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप माइक भी ऑन करके बता सकते हैं. Anyone who would like to go first? Yeah, I would like to speak. Assalamu alaikum. I am Samreen. And when I heard this topic of boundaries, I was really eager to attend the session. Only reason because I see my patterns in my life, and I see that boundaries are a big reason why I have faced a lot of downtimes and all. My big issue comes in when I can't understand when to draw a line, as in when am I stopping the flow of events? Am I being an obstacle by putting a stop, or is it that the situations were meant to lead on to one thing to other, and I just should I allow that? Even with friends or at work or any situation, it's not anything else, but yeah. चाहे वो फ्रेंड्स हो या वर्क प्लेस हो, कब वो लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, किस मोड़ पे, आई डोंट अंडरस्टैंड. समटाइम्स आई फील मैं वो बहाव में रहती हूँ कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज सब अच्छा जा रहा है, एंड देन eventually I feel that I have given in too much and I have compromised on my own uh, uh, principles or whatever you may call it, and then yeah. Wow, that is a very interesting point that you mentioned, Samreen. So what I understood is that you want to understand when to go with the flow and when to take control of the flow. Yes, Okay. absolutely. Great. We'll definitely cover this in the workshop. Sania? मेरा नाम सानिया है, and from this session I would like to understand कि boundaries personal relationships में कैसे बनाएं without sounding offensive or without being annoying or something. True, one big issue. True. Yes. Okay. We will also cover this in the session, inshallah. Anyone else? Yeah. Assalamualaikum. Okay. Yes, go ahead. Amina. Yeah, I hi. can see. Yes. I recently moved to Calicut from my earlier city. I'm a single mother and a work from home individual. Well, this is a very interesting topic, mashallah, and I'd actually like to learn or take away how do you generally deal with the world around? Because um, uh, inevitably you always end up coming across people who try to bulldoze their way through, or for no rhyme or reason they want to act more controlling, or they basically, there are always people in society who bas meri hi chalegi, without having the scope of an individual to have even live and let live kind of a thing. तो इस तरह की situations में आप किस तरह से boundary बनाए which does not end up giving them the opportunity to do something like gaslighting, जो आजकल एक बहुत common phenomenon हो गया है.
Yes, yes. Wow, this is a very interesting take, Romana. I think this is something we can take by the end of the session when you've understood everything. And this is a question I would really like to answer after we've completed the session. So, of course, inshallah, I'm hoping that you will get to know a lot during the session about how to really go about this. But we'll definitely take this when we are discussing the questions. Thank you, Romana. Jazakallah. सैद सैदा ने भी अनम्यूट किया था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I don't know. This topic is obviously spreading awareness among women that there is a thing called boundaries. As Indian married women, I think मतलब हमारी generations में भी already ऐसा सोचते हैं कि like there's a boundary जिसके अंदर नहीं आ सकते लोग. But as Sania said, या तो हम ऑफेंसिव हो ही जाते हैं. द रीजन इज हमसे पहली वाली जनरेशन ने एक एक्सपेक्टेशन मेंटेन करके रखी है हमसे ऊपर वाली जनरेशन से कि एक औरत मर जाएगी, उसको ना नहीं बोलना है कभी. शील बी लाइक हाँ हाँ, शील आंसर एवरीथिंग, शील डू एवरीथिंग. उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है. यू कैन डू एनीथिंग विद हर, टेल हर एवरीथिंग, स्टॉप हर. क्योंकि मतलब वो now when we say there's a thing called boundaries, तो वो बन ही जाता है offensive. तो मतलब obviously these workshops are very helpful, but मुझे ऐसे लगता है कि it's gonna take a long time to change. शायद हम जब बन जाएंगे दादा दादी तो हमें हमें याद आएगा नहीं हम लोग बाउंड्रीज की बात करते थे. तो मैं अपनी बहू को या मुझसे मेरे जो होंगे छोटे छोटे उनकी बाउंड्रीज में बोलूंगी कि हाँ इनकी अपनी बाउंड्रीज है, मुझे एंटर नहीं करना है. बट या ऑब्वियसली these workshops are really helpful, and the thing gave us a chance to speak our hearts. Thank you so much. You're most welcome, and thank you for speaking up, and thank you for making me laugh and smile. जैसा कि आपने कहा कि बाउंड्री सेट करना एक ऐसी चीज है जो हमको कभी सिखाया ही नहीं है, हमको बताया ही नहीं एज अ वुमन के हमारे पास होनी चाहिए या हमें बाउंड्री सेट करनी चाहिए. तो शायद हमें 2 जनरेशन और लग जाए, हम जब दादा दादी बन जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है इनको. So that is also something which requires for us to reflect a lot कि क्या हम वाकई में हमारे दादा दादी की तरह इतना इंतजार करना चाहते हैं. क्योंकि उतना इंतजार करेंगे तो वो पैटर्न इतनी अच्छे से सेट हो जाएगी कि शायद हम वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे. सो मे बी वी आर हैविंग दीज वर्कशॉप्स ताकि हम समझ पाए कि छोटी छोटी शुरुआतें करें. सो आई होप कि इस वर्कशॉप से वी स्टार्ट अ लिटिल एंड वी डोंट हैव टू रीच बुढ़ापे तक कि हम हमारी बहुओं को और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये कर सके. ओके, थैंक यू सो मच. आई हैव there's a message from Sara, Zishan Sara. से मेंटेन हो रही है उनके लिए बट सामने वाले के लिए. Okay, You can okay. maybe take this in the question. Bilkul, yes. So this is also something that we will discuss by the end of the session, inshallah. Okay, anybody else? Should we move ahead? आगे बढ़ते हैं फिर. बिल्कुल. Okay. I don't know why this gets stuck, Humaira. Is it something I don't know about presenting? इसको शायद फिर Okay, maybe I'll have to present it again. I'm so sorry, everyone. It's absolutely fine. और I एक can मिनट share आप एक बार presentation. फुल स्क्रीन ना कर लो, बिना फुल स्क्रीन करे आई थिंक कभी कभी इट डजंट गेट स्टक. Okay, I'll try inshallah अगर अगली बार ऐसा हुआ तो.
Okay, so actually I have written these 3 points and I have highlighted bold letters में मैंने जो bold किया है, those are the exact crisp things जो हमें boundaries के बारे में समझनी है, right? तो boundaries कभी 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 हमें लगता है या बहुत generalized version है कि boundaries का मतलब ये होता है कि आप कैसे किसी को हमारे सेंटर में नहीं आने देते हैं या किसी को अलाउ नहीं करते हैं या किसी को ये नहीं करते हैं सो जहां तक हमने बाउंड्रीज के बारे में अभी तक सुना है एक परसेप्शन है कि बाउंड्रीज का मतलब ये होता है बाउंड्रीज इज अबाउट अदर पीपल राइट बट वेरी इंपॉर्टेंटली बाउंड्रीज इज व्हाट वी सेट फॉर आवर सेल्व्स कि हम कितना लेंगे हम कितना समझेंगे हम कितने एफर्ट्स डालेंगे हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं हम कितना सब्र कर सकते हैं और हम कितनी मेहनत कर सकते हैं राइट सो boundaries is what we set for ourselves in relationships that we have now these can be physical emotional mental and sometimes also financial बिकॉज हम सबके पास बहुत सारा हिस्ट्री है हमारे पेरेंट्स ने फाइनेंशियल बाउंड्रीज कैसे तोड़ी है और वेयर वी आर that was a little fun. But so we are also going to discuss a bit about financial boundaries here. Now, knowing what one wants and expects from other people in their life and what they'll accept from them, and then clearly, concisely, and calmly stating those grounds. So, Samareen, one thing which I would want you to sort of correlate with your question is here that when we know what we want from other people, what we expect from them, and what we are wanting from ourselves and our lives, and what we will accept from other people, is going to help us understand if we are going with the flow or if we want to have the flow. बहुत ही बहुत ही बेसिक सा बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है राइट बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि अगर मुझे पता होगा कि मुझे क्या चाहिए मुझे कितना चाहिए और मुझे कहाँ तक चाहिए तो मैं अपने एक्सपेक्टेशंस सामने वाले के सामने रख पाऊंगी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं इतना ही कर पाऊंगी मैं या यहाँ तक ही कर पाऊंगी लेकिन जब तक मुझे पता ही नहीं है कि what I want and what I can expect from other people and what other people can expect from me, मैं वो boundaries कैसे बना पाऊंगी? So one very important point about boundaries is हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम कितना expect कर रहे हैं और हम अपने expectations हम लोगों के कितने expectations meet कर पा रहे हैं. And that is going to help us bring those rules. Does this make sense? Yes, That it also does. Yeah. that also means that we are understanding ke what behavior of other people we will accept and what behavior other people can expect from us. So it is boundaries is a very core, according to me, boundaries is a very core part of our personality. Where you know what you are going to accept from people and you are also going to make sure कि बाकी लोगों को अंदाजा हो कि हमीदा किस हद तक सब्र करेगी हमीदा किस हद तक सुन पाएगी और हमीदा कितना गुस्सा या कितनी खुशी बर्दाश्त कर पाएगी सो यू सेटिंग योर बाउंड्रीज इस दायरे में रह के दैट यू आर एक्सपेक्टिंग what you are giving other people. Okay, so again, this is something that is literally very basic explanation, which I'm not going to read everything, but physical boundaries है, जहाँ पे your space, who can touch you, who can come near you, who can sit with you, आपके घर में कौन आ सकता है, आपके रूम में नॉक करे बिना नॉक करने के बाद कौन आ सकता है, कितना आ सकता है, आप कितना किसके साथ हैंडशेक कर सकते हो, किसको सलाम कहना चाहते हो, all of these things really come in physical boundaries. And one of the very important thing I got is also this. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that it is not permissible for a Muslim to look inside of any other house until he has been given permission. तो boundaries मुझे लगा ये बहुत ही important था यहाँ mention करना क्योंकि हम सबको जैसे रुफिदा ने बताया I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong
जैसे बताया कि हमें हमेशा से बताया जा रहा है कि बाउंड्रीज होनी ही नहीं चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली अ सुन्ना। टू सेट बाउंड्रीज इज अ सुन्ना। सो फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें। इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज ये होती है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो या एक ग्रुप में बात कर रहे हो एंड somebody is interrupting again and again, somebody is questioning your viewpoint or your opinion, that is where your intellectual boundary is being intruded or being you know breached. So intellectual boundary means somebody not allowing you to speak your thoughts. When we talk about emotional boundaries, every time somebody is invalidating you, every time somebody is telling you कि ये क्या फील कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक हो जाएगा, क्या छोटी छोटी बात में इतना बड़ा वो कर रहे हो। यहाँ पे वो आपके इमोशनल बाउंड्रीज को इंट्रूड कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप क्या फील कर सकते हो, कितना फील कर सकते हो, और क्यों फील करना चाहिए और क्यों फील नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, इसका मतलब कि वो आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को इंट्रूड कर रहे हैं। जब हम फाइनेंशियल बाउंड्रीज की बात करते हैं, इट बेसिकली मीन्स कि आप किसको इजाजत दे रहे हैं कि वो आपके फाइनेंसेस में दखल अंदाजी कर रहे हैं, या आपको बता रहे हैं कि इतना खर्चा करो, इतना खर्चा मत करो, इतना सेव करो, इसको दो, उसको मत दो, all of that. So anybody teaching you, telling you कितना खर्चा करना है, अपने पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कितने इस्तेमाल करने हैं, is somebody intruding your financial boundaries. Okay, so now when we have understood about boundaries और किस किस प्रकार की टाइप की बाउंड्रीज होती है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है if your boundaries were ever intruded and how did you feel about it? Anyone? No one? Yeah, I would like to share, my financial boundary because my personality is a spender. So Right. when I just spent, after that, the mindfulness, Mhm. that thought comes, I could have done better. And there is a guilt which comes as attached, like with the money, that this is Mhm. the reason, why I am not, where I am in financials. Right. Mhm. What you are telling, Nahid, is how you feel guilty after spending money, and how वो पूरा गिल्ट साइकिल शुरू हो जाता है कि अगर मैं इतना स्पेंड नहीं करती तो कहीं और होती। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे बाउंड्री कौन सी हुई और कहाँ पे हुई? If you Actually, can help us spending, identify. yeah. So it is हम्म। actually not spending से के बाद उतना गिल्ट नहीं होता है, लेकिन seeing the money where I am standing right now, उसमें लगता है कि there is not a balance, और ये बाउंड्री Right. हमेशा क्रॉस हो जाती है। जैसे I believe in investment, self investment, तो ट्रेनिंग वगैरह में like मैं आराम से लाखों रुपए like I will spend, एंड अभी मुझे वैक्सिंग भी, जैसे मुझे लग रहा है कि लाइक मैं 2500 या 5000 क्यों खर्च करूं, या हेयर कलर में 4000 क्यों करूं, ऐसा हम्म। अपने ऊपर खर्च करने में अभी गिल्ट है, नहीं कर पाती हूँ, ओके। और कहीं और मैं ट्रेनिंग में कर दूंगी। ओके। आई सी यहाँ पे दो इश्यूज आ सकते हैं या हो सकते हैं, राइट? आर यू ओके अगर हम ये सबके सामने बात कर रहे हैं, या आप चाहते हो कि हम थोड़ी बाद में भी इसके बारे में पर्सनली बात करें? वट एवर यू नहीं से नहीं, ना। आप अभी अभी भी कर सकते हैं, इफ ओके। दिस इज द यहाँ बेनिफिटिंग पे, कॉन्वर्सेशन। यस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद एक्चुअली मैंने भी मिस कर दी कि हम इसके बारे में बात करें, बट थैंक यू नाहिद के वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बाउंड्रीज अपने खुद के साथ सेट करना क्या होता है, राइट? अपने साथ खुद के साथ बाउंड्री सेट करना इज व्हाट योर क्वेश्चन इज अबाउट। कि यू यू आर स्पेंडिंग इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आप अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर रहे हो, बट एवरी टाइम यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ देयर इज गिल्ट एसोसिएटेड।
इसका मतलब कि हम्म, हमने अपने साथ वो बाउंड्री सेट नहीं की है दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन ट्रेनिंग और आई एम गोइंग टू हम्म, इन्वेस्ट दिस मच money in myself. So that Yeah, you are boundary, absolutely right. setting with yourself, हम्म, is where we need the work to be done, करेक्ट right? कि कब कहाँ कितना करना है वो क्लैरिटी नहीं है और वो इंट्रूड कर जाती है और फिर वो मैस हो जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. आई होप कि हम आगे जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एंड I'll be happy to help you even after that in this, inshallah. थैंक यू. Okay, we'll move ahead. Anybody else or we'll move ahead? कमेंट चैट बॉक्स में शेयर किया कुछ. Okay. मैं पढ़ दूं. हाँ, Yeah, नहीं मतलब Mera, please read it so that others can Yeah. also. yes. हाँ, तो ये लिख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स जब उनको बताते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी और घर जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, तो उसमें बहुत रिसेंटमेंट यानी एक तरीके का गुस्सा और चिढ़ आती है उन्हें. Right, right. This is one very important and very prevalent thing जो होती है. तो yes, I can see कि यहाँ पे आपकी boundaries intrude होती है and you also feel resentment towards it. Okay. Self-confidence goes down when someone intrudes or rather control my mental and emotional boundaries. Absolutely. So you are telling case your self-confidence goes down and that's how you feel every time आपकी mental और emotional boundaries को कोई intrude कर लेता है या उनको control करने की कोशिश करता है. Yeah, बिल्कुल नफीसा. Yes. This is also one place where पुअर डिसीजन मेकर्स हमें बताया जाता है वहां पे हमारी इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज इंक्लूड होती है एंड इनकरेजमेंट इज एब्सेंट मोस्टली. यस बिल्कुल. एक सो यहाँ पे एक हमारी बार मैं इंटेलेक्चुअल. उर्दू में सॉरी मैं एक बार उर्दू में भी बोल देती हूँ. हाँ हाँ सभी हाँ के लिए. सॉरी. तो यस फिर नेक्स्ट जो कमेंट है वो ये कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अगर कोई पर्सनल इमोशनल या मेंटल बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करता है तो. और अगली बात जो लिखी है ग्रुप में चैट में ये है कि औरतों को ऐसा समझा जाता है कि उनको फैसले लेने की कुवत नहीं है और उनको एनकरेज नहीं किया जाता, यानी बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जाती है कि वो कोई डिसीजन लें खुद से. बिल्कुल. तो सेकंड पॉइंट जो है जहाँ पे औरतों को बताया जाता है कि वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल बाउंड्री हमारी इंक्लूड हो रही है. और उससे पहले का जो जो कमेंट है जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है क्योंकि मेंटल और इमोशनल बाउंड्रीज इंक्लूड हो रही है वहां पे हमें समझ में आता है कि वो हमारी इमोशनल बाउंड्रीज को अफेक्ट कर रहा है. ये ओके. एक्चुअली बहुत ज्यादा आई थिंक स्पेशली आई डोंट नो मेल पैट्रियार्की या आप कह लें मेल इनसिक्योरिटी या जो भी है. आई थिंक अ लॉट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द मेल पार्टनर in a marriage goes towards condemning a woman if they feel ke उनकी वाइफ जरा भी. I'm sure there are exceptions to this rule, but I myself I have experienced this in a very severe manner where there was severe emotional and mental abuse in my marriage. And when my background was from a very corporate environment, and alhamdulillah काफी तरक्की भी हुई थी जॉब के सिलसिले में. I had opportunities to travel across the world and I always worked with top management वगैरह. but फिर तौफीक मिली तो फिर बाद में you leave all that and then alhamdulillah you start following practicing deen. And then you get married thinking, this person is also practicing and you will, grow emotionally and spiritually.
But unfortunately, ये ऐसा नहीं हुआ. And I was a fool that although there were too many red flags, I didn't react to it because I kind of went into a huge shock. Okay, I mean, how does this happen? And the society का pressure इतना होता है कि आप पहले तो you are going in an opposite direction कि आप इतनी modern और progressive life जी रही थी, and then you are taking a U-turn and trying to lead more Islamically. और फिर आप इस तरह की Islamically cultural family में शादी कर रही हो. Although my husband was an engineer, he himself had good opportunities of work and abroad and things like that, or he had a similar journey of coming towards deen. But my entire time, the 10 plus years that I stayed in marriage with him, I mean, I'm still married, I'm not separated, and I'm not divorced. So his entire energy went towards criticizing me, condemning me, and putting me down, so much so that until a few years ago, I had turned into such a vegetable that I would not even be able to speak a single sentence with anybody at all. Whereas my job profile itself was in communications. So so my boundaries completely disintegrated. Okay, I did not have any sense of worth or indication ke ab kya, it's like I had become a puppet and a vegetable. So those is a kind of collapse of a boundary, I would say. Astaghfirullah. I can imagine everything you must have felt, Romana. Thank you for trusting us and for sharing all of that you just shared. And I'm glad you're able to associate how your boundaries were completely disintegrated during all of this time. I hope this workshop helps for you in your future and current relationships as well, inshallah. Thank you for Alhamdulillah. sharing this. I've been with this group for the last few months now, and I'm grateful for having this safe space to talk about it every now and then. That's good to know. Thank you. Okay, we'll move ahead, inshallah. Okay. मैं स्लाइड शेयर करूं क्या? आपने मेरे साथ शेयर की थी हमें. Please, Humaira, if you can. Yeah. Actually, ये वाली अलग है. अच्छा. हाँ, मैंने एक दो चीजें ऐड की है. Okay, it's yours. Okay, so ये मैंने 5 sentences बनाए हैं and ये 5 situations है. So I want us to do a little activity जहाँ पे I'm going to read one of these and of course हम लोग सारे पांचों पढ़ने वाले हैं, पांचों situations में जाएंगे. But every time you feel there's a yes or a no, if there is a yes, thumbs up. If there is a no, you do a thumbs down. ठीक है? Because I understand के कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं और हाँ या ना भी माइक में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. So can we do this a little? This will help us understand the basics of boundaries if we know or not. Good to go? Okay. So you have only a day off, and on your week off, you are told to attend a family function or social gathering. Would you want to set a boundary here or no? If yes, तो a मुझे heads रिपीट up. करिए प्लीज. Yes. Okay. So हम ये situations पढ़ने वाले हैं और इन situation में अगर आपको लग रहा है कि इस situation में boundary set करनी चाहिए तो हम thumbs up करेंगे हमारे Zoom पे जो feature है उसमें. और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे boundary set करने की जरूरत नहीं है तो हम thumbs down करेंगे. Right? Clear? ओके. तो पहला सेंटेंस ये है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन छुट्टी मिल रही है और उस दिन छुट्टी पे हमें बताया जा रहा है कि आपको एक फैमिली फंक्शन या एक सोशल गैदरिंग अटेंड करनी है. तो क्या यहाँ पे बाउंड्री सेट करना जरूरी है या बाउंड्री सेट करना जरूरी नहीं है? 5 thumbs up and 6.
Okay. One down. You can check. Yes, yes. Okay, I can see a thumbs down. बाकी सब आपको क्या लगता है? Okay, we'll move on to the next one then. So the next one is आपकी अम्मी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि आपके जो बहुत फेवरेट ऐसे बहुत चहीते कपड़े हैं आप वो अपनी बहन को दे दें, या फिर तो वो बहुत नए हैं, एकदम नए, आपने भी नहीं पहने हैं, पर आपको बहुत पसंद है वो कपड़े। तो आपकी मम्मी बोल रही है कि वो कपड़े आपकी बहन को पहनने के लिए दे देने हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या यहाँ पे बाउंड्री सेट करना जरूरी है या नहीं है? ओके, ओके, देयर इज अ thumbs down, down, okay, okay. Okay, so there's a one thumbs down here also. Okay, there are two. Yes, there are two. Third one, you have certain food preferences. ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब ने कहीं ना कहीं, अगर हमारे इन-लॉज है तो एक्सपीरियंस की होगी कि हमारे अपने फूड प्रेफरेंस होते हैं कि मैं ये नहीं खाती हूँ, या ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया, या ऐसे नहीं ट्राई किया, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, राइट? आई डोंट ईट नॉनवेज वेरी मच, आई डोंट लाइक इट, बट हम हमें बताया जाता है कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं खाते, खाना पड़ेगा। सो यू प्रेफर समथिंग बट यू आर टोल्ड टू ईट, जो भी बना है उसको खाना ही पड़ेगा, और आपको ये आपके इन-लॉज बता रहे हैं। तो क्या वहां पे बाउंड्री सेट करना जरूरी है या नहीं है? ओके, वन, ओके, there's one thumbs down, there are two up. Okay, okay, absolutely, Mariam, yes. Okay, so a good number of thumbs up and there's one thumbs down. Okay, now एक husband वाला ले लेंगे। Your husband is asking you कि आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, कितने खर्च कर रहे हो, और अपने घर वालों को क्यों दे रहे हो, अपने भाई बहन को, या अपने घर पे अपने पैसे क्यों दे रहे हो। सो यू आर अर्निंग द मनी, आप खुद पैसे कमा रहे हो, बट आपके शौहर जो है वो आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बाउंड्री सेट करना जरूरी है? ओके, 5 thumbs up. Okay. Yes, 6. And one last one. कल सुबह जल्दी उठना है। Yes, money I can return to you if you want. Exactly, yes, इकरा, बिल्कुल। Okay, so the last point कि कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है, and you will have to leave early. जल्दी निकलना होगा, और आपके घर के जो काम है, जो भी घर के काम होते हैं सुबह सुबह, वो आप कल नहीं कर पाओगे। तो क्या वहां पे बाउंड्री सेट करना जरूरी है? ओके, ओके, यस। So everybody is giving a thumbs up. Okay, perfect. Yes. Okay, so everybody is giving a thumbs up here. Good. Okay. तो ये सिचुएशंस बहुत ही रैंडमली मैंने सोची, जो बहुत हम डेली हमारे घरों में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगती है कि नॉर्मल है, यहाँ पे क्या जरूरत है बाउंड्री सेट करने की। पर ऐसी सिचुएशंस जब बढ़ती जाती है और पाइल अप होती जाती है, तब हमें धीरे धीरे उन्हीं घर वालों पे, उन्हीं फैमिली मेंबर्स में, उन्हीं रिलेशनशिप्स में रिजेंटमेंट फील होने लगता है।
क्योंकि हमें एक बेसिक सी चीज है ना कि फॉर एग्जाम्पल अपनी बहन को कपड़े देने हैं, तो मैं ये बहुत बहुत ही प्यार से दिल से खरीद के अपने लिए कपड़े लाई हूँ, अभी लेके आई हूँ, 2 दिन ही रखे हैं और मैंने सोच के रखा है कि उसको इसकी शादी में पहनूंगी। बट मुझे बताया जा रहा है कि तुम अपनी बहन को पहनने के लिए दे दो। सो ठीक है, आई लव माई सिस्टर और मैं अपने कपड़े दे दूंगी, बट वंस आई एम डूइंग दिस, विल आई बी ओके टू गिव वही कपड़े बाद में? विल आई बी ओके कि अगली बार भी जब मैं नए कपड़े खरीद के लेके आऊंगी तो शायद मुझे अपनी बहन को फिर से देने पड़ेंगे? विल आई बी ओके कि वो हर बार आके मेरे कपड़े पहन के ले जाएगी और शायद मुझे पहनने नहीं मिलेंगे? So when we talk about boundaries, we also understand the consequences that are going to happen हमारे एक फैसले से, right? So एक foreseen understanding of all the situations जो हमारे घरों में होती है. But I would just like to add a point here, because I was one of the persons who put the thumbs down to this. Reason why मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ना कपड़े, for me myself, my opinion, मुझे कपड़े इतना important aspect नहीं लगता है कि मैं उसको रिश्ते के ऊपर रखूं. And for me myself, I love her so much, like you mentioned, you love your sister so much, that I love her so much that she can wear my she has actually, like, you know, once picked up a new thing that I've never worn it. And मेरे को तो ऐसा like पानी जैसा ले ले यार, like, you know, it's for me, it's that so I don't mind. हाँ, एक outsider आएगा शायद तो I might think twice, but फिर भी मैं दे दूंगी, क्योंकि कपड़े is like सबसे हल्की चीज लाइफ में अभी फिलहाल, तो I don't mind, it's okay. Yeah. Perfect. So that tells me that you are aware of your boundaries. You are aware of how much you want to share and what can you share and who you can share with. So this is an amazing awareness about your boundaries. Good job. Okay, why do we need boundaries? ये एक इतना बड़ा सवाल था जो मैंने लिखा और मैंने सोचा कि ये पिक्चर लगा दूं उसमें, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि why do we need boundaries? And one reminder with it is that every time we are saying a yes to other people, do we end up saying no to ourselves? जितनी बार हम लोगों की हाँ में हाँ भर रहे हैं, लोगों की हर बात मान रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को साइड में रख रहे हैं उसके लिए? क्या हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं उसके लिए? Right? So that is one reminder we want to understand before we know why we need boundaries. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? Till here? Okay, I think there's no question till here. Okay, we need boundaries because you need boundaries because your health and well-being, right? तो जब हम एक बहुत ही जनरलाइज पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमारी बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी काम दिया जा रहा है, हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, हमें कोई भी रोल दिया जा रहा है, तो उस रोल के अंदर हमें उतना परफॉर्म करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, वो एफर्ट डालना पड़ेगा जहाँ पे हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों इन्वॉल्व रहने वाली है। हमारे पास अपने काम रहने वाले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, और बाकी जो लोग हमें बता रहे हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हमारे पास वो भी होने वाला है। सो इफ अगर मैं बाउंड्री सेट नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या इतना वर्कलोड ले पाऊंगी? अगर मैं बाउंड्री सेट नहीं कर रही हूँ तो इतना सारा काम करके या इतना पूरा दिन भाग के या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या मैं इस काम को उतना 100% दे पाऊंगी जो मेरी बॉडी और मेरा माइंड अलाउ कर रहा है? इफ यस, वेल एंड गुड. इफ नो, इट मीन्स दैट वी आर हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो काम करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, and that is going to affect our health and our well-being, and that is why one of the reason we need boundary, right? So that we don't get overworked, हम बहुत सारा काम ना कर ले. Another thing is your autonomy and individuality. If you are not setting boundaries, अगर आप अपनी
हदें नहीं बना रहे हैं, तो आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं, लोगों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, विच मीन्स आप जो भी कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, अपने काम में, उनमें सबसे ज्यादा लोगों का लोगों के लिए सेंट्रलाइज्ड है और आपके लिए नहीं है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट करने वाला है और आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करने वाला है। आप जितनी बार लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और अपने आप को कम इंपॉर्टेंस दोगे, उतनी बार आप अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाओगे, उतनी बार आप अपने आप को उस पोजीशन में नहीं रख पाओगे जहां आप अपने आप को पहले रख के अपने लिए फैसले कर सको। वी ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट? तो हम जितनी भी, ये एक पॉइंट है जो सानिया वांटेड टू फॉर अस टू लर्न ड्यूरिंग द वर्कशॉप, कि हम अपनी रिलेशनशिप्स में से वो पर्सनल बाउंड्रीज बनाए जहाँ पे हम अनॉय भी ना करें सामने वाले इंसान को और कम्युनिकेट करें कि क्या है। सो जो भी हेल्दी रिलेशनशिप्स हमें जिंदगी में चाहिए, वो रिलेशनशिप्स तभी बन पाती है जब हम उन रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेट करते हैं और रिस्पेक्ट कर पाते हैं। जब हम उन रिलेशनशिप्स में बाउंड्री नहीं बना पाते हैं, हम उन रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगी, या मेरे लिए टाइम सेट नहीं हो रहा है। जब हम अपने आप को उस रिलेशनशिप में नहीं देख पा रहे हैं और सामने वाले इंसान के टाइम के हिसाब से, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो उस इंसान के लिए हम बहुत ही ग्रेजुअली डिसरिस्पेक्ट बना रहे हैं और उनको रिजेंट कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू लीड कि हम वो रिलेशनशिप को बहुत ही अलग नजरिए से अब देखना शुरू कर रहे हैं, राइट? सो जब हम हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हेल्दी रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन ही रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन होता है। और रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन उन रिलेशनशिप्स में बहुत मुश्किल हो जाती है जहां पे आप अपने आप को नहीं रख पाते हो, जहां आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर पाते हो, या अपने पॉइंट्स को ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हो। वाज दिस पॉइंट क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है शायद कहीं कुछ गोल गोल घुमा। Okay, I would consider that it was clear. Yeah, Your it was work-life clear. balance. Great. Okay. Your work-life balance. अगर if we are working और हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ होती है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा काम ले रही हूँ, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रही हूँ, अपना वर्कलोड डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लाइफ के पर्सनल लाइफ के अंदर से जो टाइम है वो खींच रहा है। सो वो जो वर्क और लाइफ का बैलेंस होता है वो पूरा डगमग हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि काम कितना करना है और पर्सनल लाइफ में कितना ध्यान देना है, because I'm taking a lot of work and I'm not managing what is happening in my personal life. That is also affecting my efficiency, and that is also affecting how much I am able to learn from that work. A very important thing is we need boundaries, because boundaries की वजह से हम अपनी personal growth पे ध्यान दे पाते हैं। ये एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट कभी कभी हो जाता है, या नापसंद होता है ये पॉइंट, बट जब हम अपनी जिंदगी में बाकी लोगों को सेंटर हटा के अपने आप के ऊपर थोड़ा सेंटर या ध्यान ले लेते हैं, तो हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो इंटरेस्ट है, हम उनको ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान ही बाकी लोगों के ऊपर होता है, उनकी पसंद की पे होता है, उनको खुश रखने में होता है, उनके हर काम करने में होता है, तो हम अपना जो सेंटर है, अपना जो कोर है, उसको बहुत ही जल्दी खो देते हैं, बहुत ही जल्दी। तो हमारे लिए इट बिकम्स इजियर कि बाकी लोगों की पसंद के ऊपर काम करना है, बाकी लोगों के हिसाब से काम करना है। आई विल गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस, बट दैट ग्रेजुअली बिगिंस टू अफेक्ट आवर ग्रोथ।
And a very, very short and simple explanation कि we set boundaries because it enables us to take care of ourselves, maintain healthy relationships, and it also helps us achieve whatever we want to achieve personally and professionally, or including respecting other people. And a little point here, what happens when we don't set boundaries? जब हम boundaries set नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारी health और well-being पे affect होता है, हमारी self respect और independence affect हो जाती है, हमारी relationships में जो communication होना चाहिए वो respect नहीं है, उसकी वजह से हमारी relationships बहुत कमजोर हो जाती है. Of course, we lose our work-life balance, and as I said, our personal growth is somewhere refrained or stopped. Any questions here? Okay, I guess not. So ये पिक्चर प्रेजेंटेशन मिला मुझे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि क्योंकि बहुत ही अलग अलग किस्म की बाउंड्रीज होती है, राइट? हेल्दी बाउंड्रीज है जो एक्चुअली हम आइडियली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पोरस बाउंड्रीज है और बहुत रिजिड बाउंड्रीज है. अब जब हमें बाउंड्रीज के बारे में अंदाजा नहीं होता है तो वी डोंट नो कि हमें देना कितना है और लोगों से मिल क्या रहा है, लोगों से लेना कितना है. That is why a lot of mess up happens, right? So that's why we are going to understand कि healthy boundaries का explanation ये है कि हम लोगों से connected भी है और protected भी है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं या अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, लोगों से अलग रह रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं, अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं. Healthy boundaries always means that we are also connected with people और हमारी प्रोटेक्शन भी हो रही है जहां पे कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है. So we can connect with others while also maintaining our sense of self. We can take in love from others. यहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और हमारी जो अपनी पहचान है, हमारा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे खुद के लिए, उसको भी मेंटेन कर रहे हैं. और लोग हमें जितना प्यार देना चाहते हैं, जितनी इज्जत देना चाहते हैं, वो ले भी रहे हैं हम. और इसमें क्या होता है दैट वी शेयर आवर फीलिंग्स, opinions, perspectives, while respecting and allowing others to be distinct and separate from us. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिन लाइन है, राइट? कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, पर ये समझ भी रहे हैं और ये उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं कि वो हमसे अलग है या वो हमें समझेंगे या समझेंगे नहीं, या वो हमसे अलग नहीं है. तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट मैं जो भी शेयर कर रही हूँ, मैं जितना बता रही हूँ, वो सही है और वो ठीक है. पर सामने वाला इंसान जो है वो मुझसे अलग हो सकता है और वो अलग चीजें ले सकता है और ठीक है उसमें, राइट? सो वी आर ओके विद वट एवर इज हैपनिंग देयर, वी आर नॉट लीविंग आवर ग्राउंड. इज दिस क्लियर? Okay. Now, porous boundaries is where you are connected, but you're not protected. It basically means that आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बट you're not protecting yourself. So you are also taking a lot and you are also giving a lot, right? So we absorb and allow in what is not ours. We lose our sense of self. बहुत बार हमने ये देखा है कि लोग जितनी भी हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं या अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कर रहे होते हैं, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि वो उनके मसले हैं और एक हद तक ही हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा
मुझे उनका स्ट्रेस, उनकी टेंशन, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम वो सारे जो जितनी सारी चीजें हमने फील की है उनके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी सिचुएशंस के बारे में, वो घर तक लेके जाते हैं, रात तक लेके जाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनको हेल्प करते रहते हैं, उनको बार बार उनसे कनेक्ट करते रहते हैं कि आप ठीक हो, क्या हो रहा है। तो हम अपने आप को कहीं खो ही देते हैं और उनकी प्रॉब्लम से हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। So that is where we are receiving everything they are giving, and we are giving all of ours to them, but हमारा अपना ground नहीं रहता है वहां पे। So that is where porous boundaries take place। और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा दे भी देते हैं, हम लोगों के प्रॉब्लम्स में, लोगों के मसलों में घुस जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, उनके थॉट्स को कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाब से क्या है, कितना है, और हम दे ही देते हैं। मतलब वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइव्स, इन देयर प्रॉब्लम्स, कि हम भूल जाते हैं कि ये एक हद तक ही मेरी प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं इसका स्ट्रेस नहीं ले सकती। So that's what porous boundaries really mean. And when we talk about rigid boundaries, which is also something we're going to discuss a little later, कि we are protected but not connected। ये बहुत ही प्रेवलेंट चीज है जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों में देख रही हूँ, जहाँ पे उनकी बाउंड्रीज इतनी नैरो है, इतनी रिजिड है कि वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं दैट दे हैव डिटैच्ड देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पीपल, राइट? एंड वी डू इट। तो बाउंड्रीज के दो एक्सट्रीम्स होते हैं, और हमने ज्यादातर ये दो एक्सट्रीम्स ही देखे हैं, जहाँ पे एक तरफ पोरस बाउंड्रीज है, जहाँ पे आप बहुत दे देते हैं और बहुत ले लेते हैं, और एक तरफ रिजिड बाउंड्रीज है, जहाँ पे आप अपने आप को इतना डिस्कनेक्ट कर लेते हैं दैट यू डू नॉट have that enough of emotional connection with anybody, including your family members। So rigid boundaries में you are not allowing, आप लोगों को इजाजत भी नहीं दे रहे हो कि वो आपके बारे में सोचे, वो आपको कॉल करे, वो आपके बारे में पूछताछ करे, वो मतलब पूछताछ तो नहीं, but somebody who's concerned, you don't allow them to be concerned for you। सो यू लॉक, आप उनको ब्लॉक कर देते हो अपनी जिंदगी से, और आप अलाउ नहीं करते हो कि कोई आपकी जिंदगी में कहीं से भी दाखिल हो सके। और जब हम अंडर गिविंग की बात करते हैं तो हम वो देते ही नहीं है। मतलब जहां पे हमने दरवाजे को ताला लगा दिया है कि कोई इसमें से अंदर आ नहीं सकता है, हमने ये मेक श्योर भी कर दिया है कि यहाँ से हमारी कोई भी चीज बाहर न जाए। तो हम लोगों से बात करना कम कर देते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, हम लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, लोगों को नहीं एक्सपेक्ट करने देते हैं हमारे अंदर से। So that becomes very rigid। So what we are experiencing, what we are seeing nowadays is the two extremes of boundaries, where one extreme is porous boundaries and the other extreme is rigid boundaries। So what we aim to have is healthy boundaries, where we are also connected and where we are also protected। Any questions here? Okay, I haven't checked chat box। So Hamida, I felt like आपने जो भी पढ़ा healthy, porous and rigid boundaries के बारे में, I feel I could connect with each one of them, and I don't means I can't put myself into one bracket only कि I only have healthy boundaries or I only have porous। कभी-कभी I see myself having healthy boundaries, कभी-कभी I see myself having porous, and कभी-कभी I see myself having rigid, and then maybe there's a cycle or a spiral that goes on, then I get back to my healthy boundaries, then eventually I'll land up in porous, and then I go to I don't know, I keep shifting between these, I feel it's not just one kind in my personality or my life. Yeah. That tells me, Samreen, that maybe we have different kinds of boundaries with different people and in different situations. Yeah. So maybe a lot of self-awareness and a lot of reflection there can help understand why some boundaries in some situations and why some boundaries in with some people. Yeah. I hope that helps, inshallah. Okay, we'll move ahead.
Okay, this is stuck again. So, practical skills to set boundaries. Honestly, ये जो skills है वो बहुत ही ज़्यादा personalized है. When I say personalized, I came up with these 5 things by understanding कि how as women हमारे घरों में जो हम बहुत ही डेली चीजें देखते हैं वहां पे हम कैसे कर पाएंगे, राइट? सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल वेज वी कैन सेट बाउंड्रीज. क्योंकि जब हम बहुत ही ज्यादा रिसर्च बेस्ड पेपर्स देखते हैं या हम बहुत ही वेबसाइट्स को रेफर करते हैं तो वहां पे बहुत अलग अलग चीजें हैं और वो बहुत ही ज्यादा generalized है, right? So I tried to make it a little objective and also um, something that may help. So when I was thinking about what are the things that can help us set boundaries, the only thing that came to my mind is कि बहुत बार हम अपने घरों में जब हमें बताया जाता है कि जाओ अभी मीटिंग छोड़ दो, काम नहीं करो अपना और जाके किचन में वो काम खत्म कर दो, तो हम वहां पे अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं कि नहीं अभी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मैं वो बाद में कर लूंगी. वो इसीलिए क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट? सो अगर मैं बताती हूँ अम्मी को कि अम्मी अभी मेरी मीटिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं 1 घंटे बाद ट्राई करती हूँ, 1 घंटे बाद ही काम खत्म कर लूंगी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि घर पे थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, ये क्या है, काम छोड़ दो, काम करने की क्या जरूरत है. हम जब भी बाउंड्री सेट करना सीखेंगे, राइट, हम सब जब भी बाउंड्री सेट करना सीखेंगे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री सेट करने में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं. सो इफ आई एम इफ आई एम रेडी कि माई मदर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड लाइक दिस और घर पे ये थोड़ा सा झगड़ा होने वाला है मेरे काम को लेके, घर के काम को लेके भी, तो मैं उस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी, उस चीज के साथ कैसे डील करूंगी, वहां पे हमें समझ में आएगा कि वहां पे कितनी बाउंड्री सेट करनी है और किस हद तक मैं आगे जा सकती हूँ. सो आई एम ट्राइंग कि हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें. इफ यू हैव सम कॉन्सिक्वेंसेज इन योर माइंड एंड इफ यू कैन टेल मी वन डिफिकल्टी यू हैव इन सेटिंग वन बाउंड्री, तो शायद हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. क्या कोई इनपुट देना चाहेगा यहाँ पे? Anybody? Okay, there's a something on the chat box. Okay, this is something we are going to definitely talk about. Um, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में एक चीज आई है जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बाउंड्रीज की समझ और बाउंड्रीज प्रैक्टिस करने का बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बाउंड्री हर हमेशा तोड़ दी जाती है या ट्रांसग्रेस कर जाती है, उनकी मम्मी हमेशा कर लेती है और बहुत ज्यादा गिल्ट होता है उसके बाद कि उन्होंने कुछ गलत किया या उन्होंने शायद अपना टेम्पर लूज कर दिया. तो जब भी उन्हें लगता है कि उनकी बाउंड्रीज वायलेट हो जाती है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से या किसी ऐसी तरीके से जाता है जहां पे वो वापस बाउंस बैक करता है. तो उन्हें समझना है कि वो अपनी बाउंड्रीज को कैसे क्लियर करे बड़ों के सामने और उनको बिना हर्ट किए और इररिलेवेंट महसूस कराए बिना कैसे वो बाउंड्रीज स्टेट कर सकती है. ओके. तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये ना हम कम्युनिकेशन वाले पॉइंट में अच्छे से कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसको कम्युनिकेशन में लूंगी.
But do we have any example for understanding consequences? Okay. एक काम करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ और उसी एग्जाम्पल में आप मुझे बताइए कि हम वहां पे बाउंड्री सेट कैसे करेंगे, राइट? सो जैसा कि मैंने कहा कि एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे 10 करनी है 5 मिनट में, बट माई मदर इज टेलिंग मी कि अभी मीटिंग बाद में कर देना, पोस्टपोन कर दो, ये काम खत्म करना है पहले, घर पे मेहमान आने वाले हैं। और मैं यहाँ पे ना मीटिंग छोड़ सकती हूँ क्योंकि मीटिंग इम्पोर्टेंट है, और ना ही मैं यहाँ पे उनको मना कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं मना करूंगी तो उनके कॉन्सिक्वेंस आएंगे, झगड़ा होगा, मेहमान आने वाले हैं, वो बहुत सारा जो कॉन्सिक्वेंस होगा, वो जो उसका आफ्टर इफेक्ट आता है, उस आफ्टर इफेक्ट से डर के मैं अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रही हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट hurdle problem we face as women in our houses, in our homes also, right? कि बिकॉज झगड़े होंगे, उसके ऊपर टाट जाएगी, उनको फिर बीच में घसीटा जाएगा, इसीलिए काम कर लेती हूँ मैं चुपचाप, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, मीटिंग बोलती हूँ कि 5 मिनट डिले होगी, और मैं काम खत्म करके चली जाती हूँ। सो हियर वी फेल टू सेट अ बाउंड्री, राइट? Now, if I want to set a boundary here, I know what are the consequences. लेकिन इसके लिए अगर मुझे प्रेपरेशन करनी है, तो आई अंडरस्टूड कि इस सिचुएशन में यहाँ पे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। मुझे अम्मी को बताना पड़ेगा कि अम्मी मेरी मीटिंग है, मैं 15 मिनट में 1 घंटे में आके ये कर लूंगी, बट मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बात बतानी है और मैं ये बात बताऊंगी, अच्छे से इसको कम्युनिकेट करूंगी, तभी मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ, राइट? बट इस बाउंड्री को सेट करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं उसको भी कैलकुलेट कर रही हूँ। सो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, वी आर अंडरस्टैंडिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अस सेटिंग द बाउंड्री, तब हमारे लिए आसान हो जाता है उस बाउंड्री को सेट करना, क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये झगड़ा होगा, उस झगड़े को भी हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं there's some is it clear or is there some confusion here? You know what, आप मम्मी का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज इफ यू हैड गिवन एनीवन एल्स, फ्रेंड बोलो, सिस्टर, डैडी या जो भी, लेकिन आप मम्मी बोलते हो तो एक सवाल ये आता है क्योंकि समवेयर आई रेड और सम इस्लामिक स्कॉलर आई हर्ड हु सेज अगर आप नमाज में हो और आपकी मम्मी आपको पुकारती है कुछ मदद के लिए तो यू आर सपोज्ड टू गो, इफ दैट इज द काइंड ऑफ that is the kind of thing attached to a mother's request. I don't know. I mean, that comes in my mind. कि मम्मी बोल रही तो maybe I can excuse myself somehow, or maybe I can obviously meeting चल रही है तो of course I can set the right expectation with माँ कि ठीक है मम्मा, this meeting is very important, इसमें ये हो रहा है and I need to attend it, and yes I will attend to your request afterwards, or you can give me beforehand, I will handle your situations before that. Definitely it's important to communicate. I see that. But yeah, वो एक सवाल कभी कभी यह भी आता है कि like I mentioned earlier. Right. I think something in the second part when you said, Samreen, के you will communicate with your mother and you will tell her के पहले मैं ये कर लेती हूँ, मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपका ये काम खत्म कर लेती हूँ, या फिर ऐसा करो आप मुझे पहले से बता दिया करो तो मैं आपका काम खत्म कर दूँ, राइट? That way, the way we are communicating is exactly we setting the boundary. कि मम्मी या फिर तो आप मुझे पहले बता दिया करो तो मैं काम वो खत्म करके मीटिंग में अटेंड कर लूंगी, बट राइट नाउ दैट आई हैव ओनली 5 मिनट्स और 5 मिनट में मुझे मीटिंग शुरू करनी है और अभी ये काम कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, मैं काम करती हूँ, मीटिंग खत्म करके आती हूँ, फिर ये काम कर लेती हूँ। दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी हैव सेट बाउंड्री, वेर वी हैव अंडरस्टूड कि ये मीटिंग अगर मैं मिस कर देती हूँ या ये मीटिंग मैं लेट शुरू करूंगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे मेरे काम में, और उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो बहुत सारा काम हो जाएगा। सो अस डूइंग दैट इज एग्जैक्टली अस सेटिंग द बाउंड्री,
The first Yeah. part that you mentioned about Samreen, कि किसी स्कॉलर ने लिखा है, तो जहाँ I'm not really an expert here, but the context I remember, Sania and Humaira, if you can, correct me if I'm wrong here, वो कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर तो बता रहे हैं या उनसे पूछा जा रहा है माँ के बारे में, और वो बता रहे हैं कि अगर मेरी माँ होती तो मैं उनके लिए उतना, so I would have been so dedicated and I would have been there so much for her कि मैं नमाज शुरू कर रहा होता और मेरी अम्मी मुझे पुकारती तो मैं नमाज तोड़ के भी चला जाता. Right? So that is the context where us prioritizing the mother or us feeling that dedication towards the mother is, I guess, Humaira, Sania again, anybody else also correct me if I'm wrong. That is one context. I don't think there is any other context or any hadith that says that you can't set boundaries with your mother or you can't prioritize something over to your mother's request. I don't know if there's anything like that. Is there anything like that? बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली ऐसे स्टडी नहीं है, पर ये बात तो है कि माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है. अम, एहतराम करना जरूरी है, उनका हक हम पर बहुत ज्यादा है. तो बिल्कुल. उस तरीके, आई मीन इसमें क्लियर कट आंसर नहीं है, पर ये बात है कि अगर आप हमने पहले से कम्युनिकेट किया है कि मीटिंग है या ऐसे, एंड इट्स नॉट लाइक वी आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब हम हाँ. उनसे बदतमीजी कर रहे हैं या उनका एहतराम कम कर दे रहे हैं. इट्स नॉट दैट. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो समझे. नहीं, मदर इन Yes. लॉ, मदर पर ही. हाँ. हाँ, मदर इन लॉ के साथ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मैंने सोचा एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल ले फॉर अस टू बाउंड्रीज के बारे में समझने के लिए. बट थैंक यू हुमेरा फॉर continuing this. Okay, so as Samreen, I hope you've got your answer. Yep. Some food for thought. Yes, sure. Okay, I'm glad. Now, Ken, I'll just very briefly mention this again कि जब भी हमें किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ बाउंड्री सेट करनी होती है, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करें कि इस बाउंड्री को सेट करूंगी या मना करूंगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं. उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पहले से प्रिपेयर करना और समझना कि वो कॉन्सिक्वेंसेस आने ही वाले थे बिकॉज आपने कहीं बाउंड्री सेट की है, will help you continue your journey to setting boundaries. Right? So one of the very important skill we want to learn is we understand consequences and we prepare ourselves beforehand to know कि हमें कैसे मना करना है और किसको मना करना है. Right? This is the first point. Now, second point is communication. The way we are communicating कि हम नहीं कर पाएंगे या मैं फिलहाल नहीं कर पाऊंगी या मुझसे ही क्यों ये काम करवा रहे हो बार बार, मैं नहीं करूंगी. जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस पिच के साथ, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम मना कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को कम्युनिकेट जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. जब भी हम बाउंड्री सेट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट और सामने वाले इंसान की वैल्यू हमेशा मेंटेन होनी चाहिए. अगर हम वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हम बाउंड्री इम्पोज कर रहे हैं, सेट नहीं कर रहे हैं. Right? So one of the very important thing is we communicate our boundaries. We tell them in a very respectful way कि I'm sorry अम्मी, मैं काम करती हूँ, मैं ये 1 घंटे में आके करती हूँ, फिलहाल मुझे जाना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं जैसे ही वापस आऊंगी सबसे पहले आपका ये काम खत्म करूंगी. So the way we are communicating is going to save us from all the consequences that are coming. Right? क्योंकि
जब हम बेसिक से सीख रहे हैं बाउंड्री सेट करना, तो हमें भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हम बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को हमेशा अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए खास है। और अगर खास नहीं भी है, अगर वो कोई स्ट्रेंजर भी है, तो दे डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। एंड हमारी बाउंड्रीज हमारा बिहेवियर बता रही है, लेकिन अगर हम उन बाउंड्रीज को ही अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सो हाउ आर वी डिफाइनिंग द कोर ऑफ आवर पर्सनालिटी? इज दिस मेकिंग सेंस? Agreed, absolutely. I think वो respectfully बोलने में ही काफी issues can be solved और काफी consequences can be taken care of by just putting it across in the most respectful, loving manner. Absolutely, yes. And I want to address one query, one message that had come in the chat box. Ki what I don't quite understand is how to state our boundaries respectfully to elders in a way that they can understand us without them feeling hurt, neglected, or irrelevant. तो ये सवाल हमें पूछा जा रहा है, जहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि हम कैसे अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्टफुली बड़ों के सामने रखें, कि बड़ों को ऐसा ना लगे कि हम उन्हें तकलीफ दे रहे हैं या उनको नजरअंदाज कर रहे हैं या उनको कम अहमियत दे रहे हैं। राइट? हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद बहुत लोगों को मैनिपुलेटिव लगती है बट नहीं है, कि जब हम बाउंड्री सेट करते हैं तो भले हम सेंटर में हैं, कि भले हम हमारी बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर रहे हैं, पर बाकी लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि मैं अपनी बाउंड्री तो सेट कर रही हूँ, पर मैं किस किस्म की इंसान हूँ, मैं कितना गुस्सा कर सकती हूँ, कितने प्यार से बात कर सकती हूँ, कितनी रिस्पेक्टफुली बात कर सकती हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज के जरिए आपको वो बता भी रही हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है, कि हम किस तरीके से वो ये कर सकते हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल हमारे बड़ों को लगता है कि हमें, आई डोंट नो, क्या आपके पास कोई सिचुएशन है मरियम जो आप चाहते हो कि मैं एग्जांपल में लूं, कि बड़ों के साथ कौन सी एक बात है जिसको हम कभी कन्वे ही नहीं कर पाते हैं, और जितनी बार कन्वे करते हैं उनको तकलीफ होती है या उनको निग्लेक्टेड फील होता है? क्या कोई भी ऐसा एग्जांपल है आपके पास? या इंटरफियरेंस इन मैरिटल अफेयर्स? ओके, तो ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपके रिश्ते भी जुड़े हुए हैं, और आपके रिश्ते अपने इन लॉज के साथ भी जुड़े हुए हैं, आपके हस्बैंड के साथ भी जुड़े हुए हैं, और आपके रिश्ते अपने घर के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। राइट? सो यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि को इन सब चीजों से जो तकलीफ हो रही है, या अ, वो जो हमारे मैरिटल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहे हैं, वहां पे हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट वेरी वेल, और जब आप वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम अ लिटिल बेटर। राइट? तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हम सबसे पहले समझे कि वो हमारे मैरिटल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहे हैं, तो हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। Right? That is the first thing. Second thing is we let them know कि अच्छा, आप मुझे बता रहे हो कि मुझे ये करना है, या मुझे इनसे ऐसे बात करनी है, या मुझे उनको ये नहीं बताना है, इससे ये होने वाला है, क्या मैं फिर भी करूं? Right? So sometimes you are questioning your elders, and sometimes you are reflecting with your this thing कि आप मुझे बता रहे हो कि मैं अपने मदर इन लॉ से ऐसे बात करूं या उनको ये बता दूं, पर क्या मैं ये बता दूंगी तो ऐसा नहीं होगा? So that is where you begin to question, and when you are beginning to question, it will help them reflect. This is the second thing which I am very personally in a very personalized manner telling you. Now third thing is, जब आप उन्हें ये सवाल करोगे, तो
we want to understand the consequences. कि how are the elders going to respond to this? How are the elders going to take के हम समझा रहे हैं, हम तो भले के लिए बोल रहे हैं, इसको समझ में नहीं आता है, खुद हमारे पास आती है, बहुत बहुत सारी चीजें the elders are going to come up with, right? तो वो जो भी consequences हमें बताएंगे, क्या वो consequences के लिए सुनने के लिए हम रेडी है? उन consequences के साथ हम कैसे डील करेंगे? And then we communicate in a very sweet, simple, brief manner कि I understand what you are telling me. मैं समझ सकती हूँ आप मुझे क्या बता रहे हो और क्यों बता रहे हो. मैं एक बार ये ट्राई कर चुकी हूँ पर ये काम नहीं आ रहा है. अब मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ. तो जो मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे उसमें? Is this making sense, Maria? Do you think this could work without them feeling hurt and neglected? Okay, okay. Does anybody have any question with this one? Okay, I don't think so. There is any question. Now, when we start practicing skills to set boundaries, we start identifying easy targets and easy situations. इसका मतलब ये है कि हम I am 24, I am 25, I am 28, I am 30, बहुत हम अलग अलग एज से आ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप से आ रहे हैं. हमें अब तक नहीं पता कि बाउंड्री कैसे सेट करनी है. अब हमें सीखना है कि बाउंड्री कैसे सेट करनी है. तो हम बहुत ही इजी टारगेट और इजी सिचुएशंस से शुरू करेंगे. अगर मेरी बहन के साथ मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ और वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस कम आने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले बाउंड्री सेट करना शुरू करूंगी अपनी बहन के साथ. अगर मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन में मैं अगर बाउंड्री सेट करूंगी और ये सिचुएशन बड़ी नहीं बनेगी, तो मैं इस सिचुएशन से बाउंड्री सेट करना शुरू कर सकती हूँ. तो धीरे धीरे बाउंड्रीज को हमारी जिंदगी में इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हम बहुत इजी लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होगी, इश्यूज कम होगी, जिन सिचुएशंस को हम हैंडल कर पाएंगे, उन लोगों के साथ हम बाउंड्री सेट करना पहले शुरू करेंगे. राइट? जिस इंसान के साथ हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम उनसे बहुत खौफज़्यादा है, उनके साथ से शुरू नहीं करेंगे बाउंड्री सेट करना. हम बहुत ही इजी लोगों के साथ और बहुत ही आसान से सिचुएशंस में बाउंड्री सेट करना शुरू करेंगे. Does that make sense till here? Now, every time you are setting boundary or every time you have failed to set a boundary, आप अपने आप को क्वेश्चन करिए कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से this did not work. तो यू फीलिंग टू सेट अ बाउंड्री और आपने उम्मीद रखी थी कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा या यहाँ पे मैं अच्छे से कम्युनिकेट करूंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है. वहां पे भी बहुत छोटी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है. बट एवरी टाइम दैट इशू कम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाउंड्री सेट करना छोड़ देना है. उसका मतलब ये है कि हमें हर बार अपने आप से ये सवाल पूछना है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने जो कहा, जो उन्होंने किया, जो सिचुएशन हुई, उसमें हम ये बाउंड्री सेट नहीं कर पाए. सो एवरी टाइम देयर इज अ बम्प ऑन द रोड, वी वांट टू क्वेश्चन दैट व्हाई समथिंग वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट रॉन्ग. हमें कंप्लीटली अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बंद नहीं करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समथिंग वी वांट टू रिमेम्बर, कि हम जितनी बार हाँ बोल रहे हैं, जितनी बार किसी को हाँ बोल रहे हैं, वो चीज जिसके लिए हमें ना बोलना है, आप अपने आप के ऊपर गिव अप कर रहे हो. यू आर गिविंग अप ऑन योर सेल्फ एंड यू आर गिविंग अप ऑन एवरीथिंग यू रियली वांट टू डू. So that is going to affect your self confidence and that is going to affect your self respect. So every time you say a yes to something, you want to say no, that is going to affect your growth. Is this clear? I'm assuming no questions here.
Okay, I am going to try to quickly finish this. Okay, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होगा, ठीक है, और ये डिस्कशन is going to be a part of our question answers also. Boundaries and responsibility. So we want to understand and discuss here कि कहाँ पे हमें बाउंड्री मेंटेन करनी है और कहाँ पे हम जिम्मेदारी से अपने आप को खींच रहे हैं. Right? So we are talking about porous boundaries here, and we are also talking about rigid boundaries here. So there's an extreme. We want to understand that what is the difference between us setting healthy boundaries and us having rigid boundaries. Is the question, is the context clear? Yes. Okay. So हमने इतनी जब बाउंड्रीज के बारे में बात की, अकॉर्डिंग टू यू ऑल, व्हाट डू यू थिंक आर बाउंड्रीज एंड व्हाट डू यू थिंक इज पुलिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी? We don't want to have the discussion. We want to have a discussion, but I'm just trying to process it. So I think Okay. having boundaries would be like protecting my own needs and my own values, and doing actions based on my needs and my values. So that would be something, boundaries. But being away from responsibility is like मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके सिर्फ अपनी ही कहानी को सोच रही हूँ और सामने वाले की नीड और उसकी ऑल्दो मैं ये रिश्ते को मैटर कर, लाइक मैं ये रिश्ता फैमिली हो फ्रेंड्स हो, इट मैटर्स टू मी, बट उसकी जो नीड्स है उस रिश्ते की, उसको मैं बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हूँ. मे बी दैट इज समथिंग ऑफ पुलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी could mean, है ना? Absolutely, Samreen. This is a very clear and a good explanation to it, that when we are setting healthy boundaries, हम connect भी कर रहे हैं और हम protect भी कर रहे हैं. लेकिन जब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से पुल अवे कर देते हैं, तो हम अपने आप को ना कनेक्ट कर रहे हैं, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Right? So we spoke about rigid boundaries and we spoke about healthy boundaries there. Yeah. So this is what is coming here. हमने बहुत जगह पे, बहुत लोगों में ये चीज देखी है, नोटिस की है हमारे आसपास, और शायद हम भी ऐसे हैं. Right? I may also have instances where I do feel that I may have rigid boundaries. तो ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें बाउंड्री सेट करनी होती है, वहां पे हम बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और अपने आप को उस जिम्मेदारी से कंप्लीटली अलग कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, okay, this one example is anyway going to come in the next slide, but for example, अगर घर पे ग्रोसरी आ रही है, राइट, मम्मी पापा घर पे ग्रोसरी ला रहे हैं और वो हमें फोन करके बुला रहे हैं कि बाहर आ जाओ, हेल्प करो, थोड़ा सामान अंदर ले जाना है. तो आई एम इन द वॉशरूम, या आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, और आई एम डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो मी टेलिंग देम कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मैं एक काम करती हूँ, बाकी लोगों को भेजती हूँ. That is me setting a boundary, right? But if I completely tell that, ठीक है, मैं आती हूँ और मैं अपना फोन बंद कर रही हूँ, अपना फोन अब नहीं उठाऊंगी, और मैं बाकी लोगों को बोल रही हूँ कि तुम लोगों को बुला रहे हैं, जाओ और जाके अपना काम करो, या जाओ और जाके हेल्प करो. That is where I am pushing away that role. I am not taking the role of being a daughter and helping there. So over there, I'm not setting a boundary. Over there, I am avoiding the responsibility being shared with me or the responsibility given to me. So when we are learning how to set boundaries, हम ये भी समझना चाहिए और हमें ये भी सीखना है कि कहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कहाँ पे हम अपने लिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं. Does this make sense? Yes. Okay. Okay, so in a very short, simple, and a very easy way,
healthy boundaries is literally knowing what works for you communicating what you need from what is working with you collaborating with that person जिनके साथ आपको वो बाउंड्री सेट करनी है, और आप अपनी नीड्स को अपनी जरूरत को वहां पे मैच कर रहे हो बिहेवियर्स के साथ, राइट? सो यू नीड टू डू योर होमवर्क, यू नीड टू अटेंड द मीटिंग, तो आप अपनी मीटिंग की उस नीड को अपने बिहेवियर के साथ या सामने वाले इंसान के बिहेवियर के साथ मैच कर रहे हो। तो आप जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले इंसान के साथ मिलके, that is going to say that you are either reinforcing your needs or you are either not reinforcing your needs while you're matching your behavior. And when you are able to do this successfully till here, you will feel that, okay, कोई issue नहीं है. I am giving enough of myself and I'm also taking enough of whatever people have to give me. So this is a very, I thought, a very basic understanding of everything we talked about previously. Any questions here? Anybody? फिर हमीदा इतने आसान तरीके से और इतने डिटेल में बाउंड्रीज के टॉपिक को कवर करने के लिए, वेरी इंटरैक्टिव ऑल्सो. I'm glad I could. Yes. So this is something we are going to do. But I would request if anybody other than Samreen could, be a part of this. Of course, Samreen, you mostly welcomed, but I would want other people also to talk if they can. So whatever we learned about boundaries, there are 3 situations, और मैं चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा वक्त ले और समझ सके कि इन 3 सिचुएशन में हम बाउंड्री कैसे सेट करेंगे, तो शायद हमने जो ये 1.5 घंटे में सीखा वो थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा. Can we start with the third situation? You do not feel like attending a family function and you go out for dinner or go out with your family. आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे? राइट. सो द थर्ड सिचुएशन इज कि आपको फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना है या आपको बाहर खाने के लिए बोला जा रहा है फैमिली के साथ, पर आपको वो नहीं करना है, तो आप अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे बताओगे? बिकॉज यू वांट टू सेट अ बाउंड्री हियर. How can we do this? Nobody? ये क्या थोड़ा सा मुश्किल है to know how can we set a boundary here? You can tell them, मतलब हम उनसे बोल सकते हैं हर दिन सही सही कि मुझे नहीं जाना है. Sorry? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें नहीं जाना, मेरा But we मन can नहीं also, है. yeah, and we can also suggest an alternate day when we could make the plans happen. Maybe that particular day नहीं हो सकता है, लेकिन किसी और दिन, so that they don't feel as if you are not interested in spending time with family. But yes, it is not possible right now. लेकिन some other day, maybe अगले Sunday जाते हैं. I will make myself to be free on then. Whatever, एक alternate solution देना बहुत जरूरी है, I feel, rather than simply giving a no as an answer. Absolutely. And also, that's a good way कि to know कि
यू नो इवन दो अगले हफ्ते भी शायद मैं श्योर नहीं हूँ या मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, शायद मैं अगले हफ्ते जा सकती हूँ, बट आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सो मे बी समटाइम्स यू डोंट हैव टू रियली जस्टिफाई कि क्यों मन नहीं है। समटाइम्स यू कैन जस्ट टेल देम कि आई नो कि आप चाहते हो कि हम सब बाहर जाए और मेरा भी बहुत मन था बाहर जाने का, बट आज मेरा मन नहीं है, तो क्या हम किसी और दिन जा सकते हैं? सो मे बी समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू जस्टिफाई कि मन क्यों नहीं है, या अगले हफ्ते कब जाएंगे, नहीं बताओ कौन से दिन जाएंगे। सो मे बी समटाइम्स यू डोंट हैव टू डू दैट ऑल्सो। Does that make sense? Or do you think that is a very rigid boundary? I So feel that अगर हम sorry, go ahead. yeah, so the thing is कि अगर हम लोग बोलते भी है कि ठीक है नहीं जाना है, स्पेशली तो मेरे साथ ये पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहा, बट इन लॉज के साथ रहा है। और बट देन समहाउ ना वो एक ट्रैप हो जाता है। जैसे कि हम नहीं गए तो कुछ देर बाद वो लोग लौट के ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब वो लोग बहुत मजाक किए, या यू नो हाउ इट वुड बी सो इम्पोर्टेंट इफ आई मीन मुझे जाना चाहिए था एंड वो सब। तो वो ट्रैप से अपने आप को बचाना एंड बिलीविंग दैट यस यू टुक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ दिस टाइम, आई थिंक इट इज अ बिग थिंग। Yeah, And I to think add it's to what Nafisa said, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमने जो डिसीजन लिया कि नहीं जाना है, जिस भी वजह से हो, उस पर रहना बाकी, मतलब कि नहीं गए क्योंकि हमारा मन नहीं था, और सिर्फ पछताना नहीं। और अगर हम नहीं, एक तो बहुत सारी जगह पे स्पेस ही नहीं होता है नहीं बोलने का, लेकिन अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो वी विल फाइंड आउट बाय सेइंग जाना था, फिर नेक्स्ट Okay. Humaira, you're not audible. हेलो Hello? हेलो I think the वॉल्यूम बहुत कम हो गया अचानक से। अच्छा आवाज तो आ रही है पर वॉल्यूम बहुत कम है। Am I the only one experiencing this? आई कैन टाइप। No, I agree. हाँ Okay, yes, there is something in the chat box that says कि पेरेंट्स के साथ बाउंड्री सेट करना इजी होता है। समथिंग दैट इज इन माय एक्सपीरियंस, जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं और जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और of course working in the field of mental health, one thing that I have experienced is that कि पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज सेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर हम बाउंड्रीज पेरेंट्स के साथ सेट कर लेते हैं तो इन लॉज के साथ सेट करना और इजी हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकली और बहुत सारी रीजंस की वजह से पेरेंट्स के हुकूक हमारे ऊपर ज्यादा होते हैं। पेरेंट्स के पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके हमारे जो फर्ज है उनके ऊपर, उनके जो फर्ज है हमारे ऊपर, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इन लॉज से तो कहीं ज्यादा होते हैं। तो बाउंड्रीज पेरेंट्स के साथ सेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम पेरेंट्स के साथ वो बाउंड्रीज सेट करना सीख जाते हैं तो इन लॉज के साथ सीखना इजी हो जाता है। अगेन, इन लॉज के साथ हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ cultural and societal pressures we all feel, right? तो इन प्रेशर्स की वजह से हम इन लॉज के साथ नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम थेरेप्यूटिक तरीके से या इवन शरिया के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए। But Yes. can I just put one perspective here, if I may, Yeah, please? yeah, sure, See, sure. I don't have an in-laws wala life, but I am a nanand of someone, if like a sister-in-law of someone. Okay. Yeah. So I've noticed sometimes, like, a wonderful person, but
sometimes what happens when ये जो exact situation आपने लिखा है ना कि एक family function है या एक family का plan बन रहा है, and when my sister-in-law won't come and won't be a part of it, I feel that somewhere you're not giving a chance for us all to meet and feel like a family, because it's so rare for us to gather up. We don't live under the same roof. I live in a different city, my family in a different city, and my brother and his wife in a different place. So we all are all scattered here and there, but very rarely we get this chance of having a time out together or something. So when we don't see her presence sometimes in that, it feels like it would have been so nice to have her there. And क्योंकि फैमिली है, अल्लाह मियाँ ने अगर ये रिश्तों को बनाया है ना, तो इसमें खटास और इसमें डिफरेंसेस आएंगी ही, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट are we only looking at our needs ourselves, or are we also giving this rishta a chance to develop? अगर हम हमेशा बोलते रहेंगे कि हमको नहीं चाहिए, ये हमारी पसंद नहीं है, हमारी, आपने वो इन-लॉज की फैमिली को तो अभी अभी इंटर किए हो, how will they know you or you know them जबकि आप लोग पैदा नहीं हो साथ में, like you've not lived together. Like I've lived with my family for 30 years. I know their behaviors, I know their attitudes, everything. So I can फिर भी मेरे को like you mentioned, आपके वो फादर एंड मदर के साथ में डिस्कस करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है these boundaries की बारे में बात. वैसे मतलब if you won't give yourself a chance to be with your in-laws, like or give them a chance to feel like a family, I feel कि I don't know, थोड़ा सा imbalance लगता है वो approach जहाँ पे आप you're not giving them a chance to कभी I don't know how to put myself in words. I'm very bad with this, but then yes, all I feel is that एक balance होना चाहिए. कभी आप अपनी भी सुनो, कभी आप उनको भी मौका दो, कभी आप अपने को पीछे रख के कभी उनको भी समझने की कोशिश करो. ऐसा एक अप्रोच होना चाहिए, ना ही कि सिर्फ मैं, because I feel that sometimes, yeah. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक वी फील अ लॉट जब सामने वाले इंसान की बाउंड्रीज या हमारी बाउंड्रीज बहुत रिजिड होती है, राइट? तो अगर हमारी बाउंड्रीज, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल साइकोलॉजिकल जो मैं शायद बताऊंगी, बट अगर सामने वाले इंसान की बाउंड्रीज रिजिड है और हमारी बाउंड्रीज पोरस है, तो वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है. एंड इवन व्हेन वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी इशू होगी, थोड़ा सा इशू होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्यों टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या हमें क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं समझने की या अपने आप को समझाने की. तो when we feel that the kind of boundaries we have in general and with these people is going to help us understand कि उनकी बाउंड्री सेट करना या उनका ना आना हमें अच्छा क्यों लगा और अच्छा क्यों नहीं लगा, right? This is one particular aspect. Another thing that comes to my mind, Samreen, is that we also, if we are opening up to people and if we are learning के healthy boundaries कैसे set करनी है, तो शायद समझना और जानना कि सामने वाला इंसान क्यों नहीं आ पाया या क्यों अटेंड नहीं कर पाया फंक्शन, या किस रीजन की वजह से, क्या ये रीजन बार बार आती है, maybe that helps us understand if that person has rigid boundaries or that person genuinely is not able to come, right? Yeah. So maybe that one thing. But you're right that when we are into relationships, it is always preferable that we give opportunities to know each other and understand each other. ओके, आई वुड रियली वांट कि बाकी जो दो क्वेश्चंस है, पहला वाला और दूसरा वाला, if you all want to take a screenshot or a picture of it and maybe in your own time reflect कि अगर ये सिचुएशन होती तो मैं अपनी बाउंड्री कैसे बनाती, so that may have you prepared for whatever kind of boundaries you're going to set इस वर्कशॉप के बाद. So you can note down the question or you can take a screenshot or a picture of it. Does that make sense?
Okay, I am hoping and assuming that everybody has taken picture or, noted down the questions. Share it in the group after. Yeah, yes, I will also do that. Inshallah. Jazakallah khair once again. I am